जी हेलो स्टूडेंट्स, अज लीनियर अलजेब्रा का लैक्चर नंबर 6 करन जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का ये अज लास्ट लैक्चर होएगा, सो बड़े ध्यान नाल समझियो। शो दैट द सैट जी ऑफ कंपलैक्स नंबर z इज़ कंपलैक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 इज़ ग्रुप विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सैट च की है, किहो जिहे एलीमेंट है सैट विच of type z where z is complex number and modulus of z is equal to 1। देखो कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरीके लिख सकते हैं सोल्यूशन z a प्लस एओटा b रियल नंबर रियल पार्ट a and imaginary part b, so z is complex number। modulus of z square root of a square plus b square, ये साढ़े कोल मॉडुलस ऑफ z। इसी तरीके असी फाइंड कर सकते हैं 1/z। सो फस्ट प्रॉपर्टी करांगे। इस सैट च की आ वो कंपलैक्स नंबर आ, सिर्फ वो कंपलैक्स नंबर आ जिन्हां दा मॉडुलस 1 आंदा। साडे सैट जी विच वो कंपलैक्स नंबर आ जिन्हां दा मॉडुलस ऑफ 1 मैगनीट्यूड 1, सिर्फ तो सिर्फ वो। सो फस्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी let z1 z2 belongs to g। so z1 and z2 are complex number and modulus of z1 and z2 is 1 implies z1 and z2 are complex numbers with and modulus of z1 1, modulus of z2 also 1। दो कंडीशन है, एक तो कंपलैक्स नंबर, दूसरा मैगनीट्यूड 1। नाउ z1 z2 आलसो बिलोंग्स टू जी। क्यों बिलोंग करता, बड़े ध्यान नाल समझना। देखो दो कंडीशन है, जो दो कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगियाँ तो वो एलीमेंट हो जाएगा जी का। वो किहड़ियां दो कंडीशन, एक तो वो कंपलैक्स नंबर होवे एलीमेंट जो भी सैट नूं बिलोंग करेगा वो कंपलैक्स नंबर होवे, दूसरा उसका मॉडुलस 1 होवे। हुण ये दो कंडीशन की सैटिस्फाई करता, बिल्कुल करता, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ complex number of two complex numbers is again complex number। ये होगी फर्स्ट कंडीशन, is again complex number। सेकेंड आल्सो modulus of z1 into z2 can be written as modulus of z1 into modulus of z2। modulus of z1 is 1 and modulus of z2 is again 1 and 1 into 1 is 1। so प्रोडक्ट भी 1 आ गई, कंपलैक्स भी हो गया बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ कंपलैक्स नंबर इज़ कंपलैक्स, तो नाल दी नाल उन्हां दा मॉडुलस भी 1 आ गया। दैट्स वाई z1 into z2 belongs to g implies closure property hold in G। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ G is closed under addition। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ law। ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ law। second property associative law। let z1 z2 z3 belongs to G which implies z1 z2 z3 are complex numbers
and modulus of z1 1, modulus of z2 is 1, modulus of z3 is also 1, which implies z1 into z2 z3 is equal to z1 z2 z3. Always hold, because associative law hold in complex numbers. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z1, ਬਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰ ਆਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ. ਸੋ implies associative law hold in set G. ਸੋ ਇਹ ਸੈਟ G 'ਚ ਵੀ ਇਹ law hold ਕਰ ਗਿਆ. Now further, third property, existence of identity. Identity search करो. Let z1 belongs to G implies z1 is complex number, जो given condition है first, and second is modulus of z1 is 1. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ Z ਚੋਂ, ਇਸ G ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ z1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G. 1 ਕਿਉਂ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ 1 can be written as 1 plus iota 0 is complex number, and modulus of 1 is 1. दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं. सो 1 belongs to G. complex number भी है 1, modulus भी 1, so 1 belongs to G. such that z1 into 1 is equal to z1, and 1 into z1 also is equal to z1, which implies 1 is identity of G. So 1 is identity element of G. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਨੈਕਸਟ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ fourth property. Further, property number 4, existence of inverse. Existence of inverse. ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? z1 ਤੁਸੀਂ G ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ z1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਨਸਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1/z1 ਲੈ ਲਓ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ z1. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ 1/z1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਜ਼ Z A plus iota B 1/Z 1/A plus iota B. ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ A plus iota B A minus iota B. ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ iota ਓਵਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ A plus iota B ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ A minus iota B over A plus B A minus B A square minus B square, which is A over
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस इयोटा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। लो जी बिल्कुल उही टाइप बन गई जो पहले सी। इफ जेड इज़ कंपलैक्स नंबर दैन 1 ओवर जेड ए प्लस इयोटा बी इज़ आल्सो complex number. If z is complex number then 1 over z is also complex number. So first condition hold also. Second one 1 upon z1 modulus करके देखो 1 upon z1 which is equal to 1 upon modulus of z1 and modulus of z1 is 1, so 1 over 1 is 1, so modulus of 1 over z1 is also 1. So both conditions satisfied. First is ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਮ ਕੋਲਨ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲਸ 1 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ z ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੈਨ 1 ਓਵਰ z ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ 1 ਓਵਰ z1 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 1 ਦੈਟਸ ਵਾਈ 1 ਓਵਰ z1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ g ਸੱਚ ਦੈਟ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ z1 ਇੰਟੂ 1 upon z1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 1 upon z1 ਇੰਟੂ z1 ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ z1 is 1 upon z1. Similarly inverse of z2 is 1 upon z2, inverse of z3 is 1 upon z3 and so on. So inverse of each element exists. So inverse of each element exists, which implies so G is a group. So G is group. जिन्ने भी एलीमेंट होणगे ना सैट च हर एक दा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलीमेंट होना चाहिए, यूनीक एसोसीएटिव ला होल्ड करना चाहिए, नाल दी नाल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए है, फिर असीं कह सकते हैं जी इज़ ग्रुप। हुण कुछ आर्टिकल टाइप क्वेश्चनस करांगे एक्सरसाइज बी। हुण नाल ही मैं एक्सरसाइज बी ते पहुंचण लग्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस कराने हैं तुहानूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस एक्सरसाइज बी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज ऑफ 1B। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनीक। आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनीक। ये क्वेश्चन करन जा रहे हैं, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, स्टेटमेंट लिख लो, राइट डाउन करो। शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज़ यूनीक। इस क्वेश्चन का हुण असीं करांगे प्रूव। इस क्वेश्चन का करांगे प्रूव। एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर बी एक्सरसाइज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की है जी। क्वेश्चन प्रूव दैट the identity element in a group is unique। ये असीं शो करांगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन, लेट G be a given group, let G be given group, let and let E1 and E2 be two different identities,
ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਕ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ E1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E2 ਸਿੰਸ E1 is identity of G implies E1 into E2 E1 into E2 इज़ इक्वल टू की आना चाहिए। देखो E1 आइडेंटिटी आ, E1 की आ आइडेंटिटी आ, E2 की आ एलीमेंट आ। इत्थे मैं जस्ट E1 नू आइडेंटिटी सपोज करता पिया ग्रुप की, E1 आइडेंटिटी, E2 जस्ट कोई एलीमेंट सपोज करो। बिल्कुल इस तरीके कि 1 इंटू एलीमेंट ऑफ ग्रुप इज़ इक्वल टू E2 सपोज करो। विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैं E1 सपोज की है, 1 इंटू E2 आंसर आ जाएगा E2। E1 E2 असीं दो आइडेंटिटीज सपोज की है तो एलीमेंट ही है ना, है तो एलीमेंट ही है ग्रुप के। फस्टली की करोगे तुसीं E1 नू सपोज करो आइडेंटिटी ऑफ जी, E1 इज़ आइडेंटिटी एंड E2 डील एज एलीमेंट, E2 take as element. So E2 into identity is E2 by definition of identity. Equation number first. Similarly, since take कह लो take, now take E2 as identity of G. इत्थे असीं सपोज करांगे E2 आइडेंटिटी है, सो E1 इंटू कोई भी इंटू नहीं कहांगे क्योंकि सानू कंपोजिशन नहीं पता, असीं स्टार लगावांगे, स्टार कंपोजिशन। मैं कंपोजिशन सपोज कर ली स्टार, कंपोजिशन सपोज कर ली स्टार। सो E1 कंपोजिशन E2। नाउ E2 इज़ आइडेंटिटी, ये की है आइडेंटिटी, ये एलीमेंट, सो आंसर आ जाएगा E1। बिल्कुल इदा जिदा किसी भी एलीमेंट नू ऑपरेट करिए ई दे नाल, आंसर की आंदा X। इत्थे कौन आइडेंटिटी है, इत्थे E1 इज़ आइडेंटिटी, E इंटू समथिंग X इज़ X, बिल्कुल एज इट इज़। हेयर E1 आइडेंटिटी, हेयर E1 आइडेंटिटी, हेयर E2 आइडेंटिटी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड, E2 आइडेंटिटी, E1 आइडेंटिटी। So further left hand side same from first and second, left side same, so right side must be also same, E2 is equal to E1, hence identity element not elements, identity element is unique। मैं एक बारी डेफिनेशन दसनी चाहूँगा तुहानूं दोबारा की सी डेफिनेशन। सपोज करो A बिलोंग्स टू G, B any एलिमेंट, then there exist, सर्च करोगे E from set G such that A इंटू जां कोई भी कंपोजिशन आ, सानूं पता नहीं किहड़ी कंपोजिशन है, स्टार यूज़ कर लो, A स्टार E इज़ इक्वल टू A और E स्टार A। सो इन्हां चों कोई भी चूज़ किया जा सकदा, इसी डेफिनेशन आंसर सेम ही आ जाए। सो हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनीक। नाउ next part is second question, prove that inverse of each element in a group is unique। हुण करांगे second question। हाँ जी, हुण असीं शो करांगे prove that the inverse of each element is unique in a group is unique, ये शो करांगे। solution let G composition star suppose कर लो, be a group
and EB identity element. Let A belongs to G. एक सैट चों एलीमेंट चूज़ कर लिया जिहदा असीं इनवर्स फाइंड करना तो शो ये करना कि जिहड़ा ए दा इनवर्स है वो यूनीक होएगा। सिमिलरली कोई एलीमेंट मैं बी चूज़ करांगा उहदा भी इनवर्स यूनीक होएगा। ये असीं करना शो। एंड लिख लो ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलीमेंट लेट B1 and B2 be two inverse of A। मैं शो ये करना कि A दा एक ही इनवर्स होना, A दा एक ही इनवर्स होना। बट मैं शो सपोज कर लिया B1 B2 इनवर्स ऑफ A। तो साडा वर्क की होना टू शो B1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2। सो किस तरीके शो करना, पहले डेफिनेशन अप्लाई करांगे। टेक पहले मैं सपोज कर लेना टेक B1 B इनवर्स ऑफ A। मैं सपोज कर लिया A दा इनवर्स B1 है। की सी डेफिनेशन A नूं उस इनवर्स ना ऑपरेट करिए आंसर की आना आइडेंटिटी। कंपोजिशन सानू पता नहीं प्लस है कि मल्टीप्लीकेशन है जो हो रहा स्टार चूज़ किया जां असीं उल्टा भी लिख लैंदे हुंदे आ B1 कंपोजिशन A इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेक B2 एज इनवर्स ऑफ ए क्योंकि ए दे असीं दो इनवर्स सपोज किए एक B1 B2। जे ए दा इनवर्स B1 होएगा तो फिर ए डेफिनेशन होएगी, जे ए दा इनवर्स B2 होएगा फिर डेफिनेशन होएगी ए कंपोजिशन B2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी और यू कैन से B2 कंपोजिशन होगी दिस। इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। बहुत ईजी स्टैप है, पता होना चाहिए की आ ये ग्रुप आ ये कोई पर्टिकुलर एलीमेंट चूज़ किया जिहदे असीं ये शो करना कि उहदा इनवर्स यूनीक आ। मैं सपोज कर ले दो इनवर्स डिफरेंट दो इनवर्स सपोज कर ले। पहले B1 जे इनवर्स है तो ये डेफिनेशन होएगी, जे B2 इनवर्स है तो ये डेफिनेशन होएगी। टू शो की करना चाहते हो तुहानूं पता होना चाहिए टू शो B1 इज इक्वल टू B2। सो नाउ वर्क स्टार्ट करिए B1 तो स्टार्ट करो एंड B1 कैन बी रिटन एज B1 इंटू आइडेंटिटी। मैं अपने कोलों लिख लिया क्योंकि B1 नूं किसी भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करिए आंसर की आना B1 ही आना। ओके फरदर मैं आइडेंटिटी की वैल्यू की पुट करा, मैं आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर देना ए कंपोजिशन B2 बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। ए वाली वैल्यू मैं चूज़ की ई दी ए वाली वैल्यू। तुसीं कहोगे सर चार वैल्यूज़ आ ये क्यों नहीं की तो उहदा रीज़न भी समझाना बाद विच। नाउ अपलाई एसोसीएटिव लॉ। देखो इत्थे कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं गी इस करके यूज़ करना तुसीं स्टार। नाउ अपलाई एसोसीएटिव लॉ बिकॉज जी बी ग्रुप विच चारे प्रॉपर्टियां होल्ड करदियां असीं किते भी यूज़ कर सकते हैं। सो ब्रैकेट पा दी असीं पहला B2। हुण तुसीं देखोगे B1 स्टार ए आ रहा B1 स्टार ए ये किहदे इक्वल आ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ई दे इक्वल। इत्थे आ जाएगा ई कंपोजिशन है स्टार B2 की वैल्यू पुट करती फ्रॉम जां बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम दिस स्टैप। आइडेंटिटी इनटू एलीमेंट की आएगा B2
यही तो मैं शो करना B1 इज़ इक्वल टू B2। सो की मिल गया मैनू B1 इज़ इक्वल टू B2। सो आइडेंटिटी नहीं इनवर्स of each element in a group is unique। शो हो गया। मैं एक बार फिर समझाना चाहना, जे B1 इनवर्स आ तो इनवर्स की डेफिनेशन लगाती हुण तुहानूं आंदी होएगी चंगी तरह। B2 इनवर्स आ तो असीं वो B2 की इनवर्स होने की डेफिनेशन लगाती। शो करना B1 इज़ इक्वल टू B2। सो असी B1 तो स्टार्ट करते हैं कि B1 इक्वल टू B2 शो करना। की कीता, मैं B1 नूं आइडेंटिटी नाल ऑपरेट करांगे तो आंसर की आना B1 ही आना। सो B1 इंटू आइडेंटिटी लिख दिता, इंटू नहीं कहांगे स्टार। हुण ई दियां 4 वैल्यूज़ दिखाई दे रही, किहड़ी पुट करनी आ वो तुसीं किस तरीके ख्याल रखना। सपोज करो हाँ जी, किस तरीके ख्याल रखना, जे तुहाडे कोल B1 आ तो पहली गल B1 वालियां 2 तो असीं रिजैक्ट कर देणियां, वो तो बिल्कुल नहीं लैणियां। जे तुसीं B1 तुहाडे कोल हैगा पहले तो आइडेंटिटी की वैल्यू तुसीं B1 वाली तो बिल्कुल नहीं लैणी, वो तो 2 कर दित्तियां रिजैक्ट। हुण गल आ गई इन्हां दोवां ते। हुण इन्हां दोवां चों वो लैणी आ, इन्हां दोवां चों वो लैणी आ, किहड़ी लैणी आ कि B1 B2 नेड़े नेड़े ना आण। जे तुसीं ये वाली लओगे सॉरी ये वाली तो की आना सी इत्थे, देखो सेम नहीं लैनी। B2 तो पहले आ चुकिया मेरे कोल, B2 वाली तो पहले ही आ चुकी है, वो नहीं लैनी। B2 वाली नहीं लैनी, B2 तो मेरे कोल पहले ही आ चुकिया। B2 तो मेरे कोल हाँ सॉरी 2 तो असीं टर्मां कर दित्तियां रिजैक्ट, 2 तो असीं टर्मां कर दित्तियां रिजैक्ट। हाँ दोबारा समझो, ई दी किहड़ी वैल्यू पुट करनी, ये करनी, ये तो हो गई रिजैक्ट क्योंकि B1 साढ़े को है। ए नहीं करनी, ए नहीं करनी, इन्हां दोवां चों किहड़ी करनी वो बड़े ध्यान नाल समझिओ। जे तुहाडे कोल B1 आ तो असीं B2 वाली करनी, ओके। तो ये भी ख्याल रखना, कि B1 ते B2 नेड़े ना आण। जे तुसीं ये वाली वैल्यू पुट करदे तो की होना सी, ये वाली वैल्यू पुट करदे तो की हुंदा, की होना सी इत्थे A इंटू जे ए वाली पुट करते की होना सी B2 स्टार A, B वाली टर्म आ जानियां सी नेड़े नेड़े, इस करके वो नहीं करना। सो बाद में एसोशिएटिव ला लगाओ, उस तो बाद आइडेंटिटी दे इक्वल आ फ्रॉम दिस स्टैप E इंटू B2। सपोज करो तुसीं इस तरीके नहीं शो कराना चाहते, दूसरा मैथड सपोज करो तुसीं B2 तो स्टार्ट करना चाहते हैं। हुण समझो तो B2 नूं की लिखोगे, तुसीं लिख लोगे B2 कंपोजिशन आ, चलो आइडेंटिटी के नाल ऑपरेट कर दो। हुण B2 स्टार ई आइडेंटिटी की वैल्यू किहड़ी पुट करनी है, देखो ये तो असीं बिल्कुल नहीं करनी, इत्थों फिर साडे कोल रिजल्ट नहीं आना। इन्हां दोवां चों एक करनी है। जे मैं देखो मैं B2 तो पहले लिख लिया, हुण मैं किहड़ी वैल्यू पुट करा, तुसीं कहो सर आ वाली कर दो B1 इंटू स्टार। जे मैं ये करांगा ना उत्थे काम फिर गलत हो जाना, 2 B वाले नेड़े आ गए। जो मैं एसोशिएटिव ला लगाना B2 स्टार B1 तो किते है ही नहीं मेरे कोल, सो ये वर्क नहीं करेगा। वो वैल्यू पुट करनी, जे तुहाडे कोल B2 आ, पहली गल B2 वालियां नूं रिजैक्ट कर दो, वो नहीं लैनी। दूसरी गल इन्हां दोवां चों किहड़ी वैल्यू लैनी, वो वैल्यू लैनी कि B2 तो स्टार्ट ना होवे, ये B1 तो स्टार्ट ना होवे, ये B1 तो स्टार्ट होंदी, ये नहीं लैनी, दूसरी लवांगे। किहड़ी लवांगे, A इंटू B2, A स्टार B2, तां जो B2 नेड़े नेड़े ना आण। जे ये लैंदे आ तां नेड़े आंदा, फिर जे तुसीं एसोशिएटिव ला अप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू बननी नहीं। हुण तुसीं एसोशिएटिव ला अप्लाई करो तो तुहाडे कोल की आना, आ देखो फिर स्टैप बनेगा तुहाडे कोल अगे फरदर B2 इंटू A, B2 इंटू A, B2 इंटू A, B2 स्टार A की है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो गया विच इज़ B2। कुछ गलत हो गया, B2 हाँ जी गलत कर लिया, ध्यान ना दोबारा करो।
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ B2 ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, B2 ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ B1 ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ B ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ? A ਸਟਾਰ B1 ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਐਂਡ B2 into A E composition B1 which is B1, so B1 is equal to B2, so inverse of each element unique। so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 3rd and 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1B ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ 1 ਲੈ ਲਓ, ਸੇਮ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ 1 into 1 is 1, ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ 1 ਹੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ 1 into 1, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਹੀ ਆਉਣਾ, 1 is equal to 1। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ 1 ਆਣੀ, ਇਨਵਰਸ 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 1 into 1 is 1। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ A 'ਚ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, 3rd ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।